My name is C. Ankit Mittal. So, today, as you all know, we are accumulated here to hear Mr. Govind, CA Govind Raigar. So, today's topic is just a second. So today's topic is regarding foreign company incorporation and how to make your client MNC group. So first of all, I would like to tell you that we should thank to ourselves. We have taken the time to enhance our एक ओटीपी आ result. रहा है वो Uh, sorry, sir. आई थिंक किसी का ऑन था. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदर्स प्लीज. यस अंकित जी, यू कैन कंटिन्यू. So I was saying that we should first thank to ourselves because we have taken time from this busy schedule. So, and secondly, I would like to extend our gratitude to the CASA for taking this initiative to organize this valuable session, which is going every Monday. So, it is more than a decade that CASA is doing very well. And I really thank you to Sumit for leading us through CASA to the path थैंक यू. of success. So, let me give a brief discussion of for CA Govind Raigar ji. So, Mr. Govind is a seasoned chartered accountant, and he is being part of EY and Mazars, and has been a partner of Malhotra and Malhotra. Now running his own business, global business consulting firm in the name of Left Brain Hot Shots Consulting. If I am not wrong, right, Govind ji? Correct. Right. So it is truly honor, sir, and I will request you to please enlighten us with your wisdom, please. So over to you, Govindji. Thank you so much, Ankit, for a brief introduction. And I would like to thank Sumit sir and team CASA first for giving me this opportunity to enlighten the fraternity on foreign company incorporations. I know Sumit sir since past 8 to 10 years. He has always been helpful कोई लैपटॉप फ्री है क्या? guiding the fraternity on various topics. And today I'm overwhelmed that I am a part of this enlightening cause that Sumit sir is carrying on. जब भी मैं किसी भी सेशन पे बोलता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले 15-20 मिनट प्रिपेयर करना होता है. बट फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेशंस इज अ टॉपिक व्हिच इज सो क्लोज टू माय हार्ट दैट आई डू नॉट प्रिपेयर टू स्पीक ऑन दिस. This is our bread and butter. So I'll go flawlessly with this, and we can take up the questions at the end of the session. Right. Govinji, it will. I will suggest to make it interactive. First, you cover the entire topic. Thereafter, take the queries from the participants so that members can get the maximum benefit and how they can grow in the global market. And Ankit ji would be there for taking all the moderation of the today's session. So once again, thank you. Thank you from my side for giving your precious time. And I request other participants to keep yourself mute so that meeting should not be disturbed. Over to you, Govind, for your deliberation. Are you able to see my screen, everyone? Yes, perfect, Govind. So I'll give a brief introduction again. So I joined Mazars and Ernst & Young later on in international tax domain. I've always been a part of cross-border transactions. My forte was transfer pricing, and soon I explored foreign company incorporations as my bread and butter. And today we have opened more than 300 foreign companies for various chartered accountants and for our own clients. And so I would be discussing about few countries, and I would start with a basic introduction of few terms which are used. We all know what is a MNC, but I will still reiterate once. We all think that a multinational corporation is a company which runs its operations in various countries, but it is not a fact. A multinational corporation is a corporate organization that has its office presence in more than one country. So just doing import and export from one country doesn't constitute to be a MNC. So we have to be officially present there to be called as a MNC. India being a favored nation, every country trusts Indian corporates, and many of our today's generation
They are taking over their father's business and they want to expand globally to redeem the benefits of liberalized policies. Then what is so special in incorporating a foreign company? Since we all trust a local people, similarly in other countries also, they trust a local organization. So suppose if you want to do business in Dubai and if you have a Dubai company, it is always an additional trust layer because they can hold you responsible in their court of law. So having a local presence gives you an edge but of doing business there. Second is you can become a MNC sitting here in India without traveling. So it gives you an edge in your branding, on your visiting cards, on your. I'm discussing all these for your clients. Basically, that what you can guide them if somebody comes to you. And branding gives you an edge that you are present across the world. You have become big. You know laws and regulations of other countries as well. Basically, it is a display game also. Next question that comes to me is, it is just a company for namesake or it is a full-fledged entity? It is a complete full-fledged entity where you can do all the legit business activities that you want to do. Import, export, goods, services, consultancy, anything, just that it should be legit and legal. Then people are very much worried about opening a bank account. I will not deny opening a bank account in foreign country sitting in India is a challenge, but it is not impossible. It is a challenge. There are regulations, there are documentation which needs to be done, and we can open a bank account. We'll discuss this in upcoming slide also. There are 195 countries around the globe. You can open a company anywhere subject to their laws and regulations. But in my career of past 6 to 8 years of opening foreign companies, I got to know that Indian people or Indian business houses most prefer these 7 countries to open their company. These countries have least compliances, both pre-incorporation and post-incorporation. And these countries have good agreements with the Indian government, which help save maximum taxes and boost a business nexus. Please let me know if I'm going too fast or slow. I'll modify my pitch accordingly. I think it's normal, I guess. And if any participant feel like that please let us know. So these are the countries where we can open a company ranging from 0 to 30 days. So if you talk about Singapore, if you give me the required documentation today, we can incorporate your company today itself. Singapore is such a organized country with respect to their laws and regulations. They do not spend time in opening a company because they know it will be a revenue loss to them. Operation of foreign company. It would be a loss to them, the maximum they delay in opening a company. So you can open a Singapore company on Foreign countries where you can easily incorporate a company. US, UK, Singapore, UAE, Indonesia. Why UAE की आती है requirement? Because I think Ankur, I think you are on. Yeah, Ankur, can you please mute yourself? Yes, please, Govindji, please. So any other country also, we can open a company. For example, Malaysia, for example, South Africa. There are other countries as well, but I have not included in the list because they are not the most favored nations. But otherwise, we can open a company anywhere, Zimbabwe, Zambia. So there are 54 countries in African continent, and every country allows opening a foreign company, subject to their minimum requirements. Sir, but how we will get the benefit, like how we will get the business from these countries if we open our LLC? Or So say, it is like today's clients, they want to expand themselves and they are seeking for a professional who can open a company for them outside India. And when they come to know and you do not possess the relevant information, you will have to pass it on to some other professional, and which gives him an option to consider both the professionals and other services as well. So basically, the purpose of this session for the fraternity is to hold your client and provide them a portfolio of services that you can incorporate a foreign company as well.
Okay. And it gives you a recurring revenue in terms of once you open the company, every year you have to make their compliances. What is the benefit of opening in Sri Lanka and Indonesia? There are so one is, as discussed in first slide, one is that first benefit for every country is that you build an additional layer of trust by having a local presence, because they can hold you responsible in their court of No, law. but sector specific, suppose in which sector, which type of sector we can target in Sri Lanka or Indonesia, like Usually the the gaming clothing sector. industry, usually the gaming industry prefers UK and Sri Lanka. The ones which wants to export some material to US, they prefer US and Canada. Similarly, UAE is one of the hub and has tax benefits also. So I'll come on tax benefits as well in the last slides. So I would request if you allow me to complete the slides first, and then we can take up each and every question. Yeah, Sure. Sanket, just give Govind ample time. I think let him complete itself. Then I think he will be able to answer all the questions. Sure. Thank you. Thanks. And these are the income tax rates. So if you see, there is no income tax in UAE up to 3,75,000 AED. So which is close to USD 1 lakh. So if your client earns an income of up to 85 lakhs INR, there is no income tax in UAE. Post AED 375,000, there is a 9% income tax, which is again lesser than Indian tax and other countries. Plus, if you have a international income, there is no tax on any amount of income. It is only taxable on domestic income. Then if you consider US 21% income tax is the least, but there are state income tax as well, which is added to this 21, which can go up to 40%. So 21 plus 19, total corporate income tax can go up to 40% in US. US is a expensive country with respect to tax expense. If we talk about UK, there is a similar tax rate as in India, almost. For corporates, it is taxed on progressive basis. In Singapore, the tax benefit is given. My personally most preferred country, and for my clients as well, it is Singapore. Singapore is most organized, most complied, and most easy to deal with. Their income tax rate is 17% flat and give you exemption for first 3 years. It could range up to zero taxation also. So Singapore runs. I request to all kindly mute yourself. So Singapore government runs itself as a company. They draw their profit and loss statement. Whatever surplus they earn, they distribute it among the residents of Singapore, which includes corporates also. They considered all the people who have paid taxes to Singapore government. They give dividends to the taxpayers. So whatever income Singapore government earns, they redistribute it after retaining some portion. They redistribute it in proportion to the tax paid by a taxpayer. Isn't it wonderful? So for first 3 years, they give you exemption. And in UAE, as I already told you, so I've taken up only 4 countries which are most favored for opening a company in today's era. Other countries we can discuss in person. These countries have VAT also, VAT or sales tax or GST. US has a sales tax of 2.9 to 7.25%. In some state, it is higher than 10% also with some surcharge components. UK has a VAT of 20%, Singapore 9%, UAE 5%. Now, only the rates are different. The mechanism of refunding of GST is exactly similar to what we follow in India. So on exports, you can claim the input tax refund. On domestic sales, you can adjust your input tax credit available. It is exactly similar to Indian GST. The compliances are also there. So UAE has a quarterly VAT compliance. Singapore has a quarterly VAT compliance. UK has a monthly VAT compliance. So the compliances are also similar, monthly or quarterly.
coming to what will happen to the profits earned in those countries. So any individual or a corporate in India can become a shareholder of a foreign company. So when you do business there, you earn profits there, what would you do with them? Either you retain them and reinvest it in the foreign company operations, or you bring it to India. When you bring it to India, you have to pay dividend tax in two countries. One is the host country, another one is the home country. In India, dividend is taxable as per dividend article of the treaty with the nation. Usually it is taxable at slab rate only in most of the countries. So you will end up paying, I am discussing about the higher side, you will end up paying 30% tax on dividends repatriated from foreign country to India. And in those countries from where you would be repatriating, you will have to pay dividend tax in those countries also based on these rates. But the beauty is that double taxation avoidance agreement gives you a benefit of the higher of the one, whichever you have paid, you will get a tax credit of the lowest amount paid in any of the countries. सर अगर ये यूएई के अंदर अगर हम कोई इंडियन कंपनी को शेयर होल्डर बना दें और सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो हम उसका डिविडेंड की फॉर्म में निकाल लें, तो फिर इंडिया में भी उसका टैक्स नहीं लगेगा ना उसका? नहीं, इंडिया में टैक्स कॉर्पोरेट पे नहीं है, देयर इज अ सेक्शन. सो इंडिविजुअल्स के ऊपर देयर इज अ टैक्स, कॉर्पोरेट्स के ऊपर देयर इज अ सेक्शन इन आर्टिकल, बट दैट आल्सो हैज सम कंडीशंस इन एवरी ट्रीटी. नहीं, जैसे सर मान के चलो कि मैं एक बैठा हूँ इंडिया में, दिल्ली में, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई दिल्ली में, एक बनाई दुबई में, और दुबई की कंपनी में सारी बिलिंग करी और वहां से फिर मैं प्रॉफिट घुमा के लाया यहाँ पे, ठीक जी, है? तो यूएई में मतलब कोई डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में लगेगा. हाँ, तो यूएई में नहीं लगा तो इंडिया में तो लगा ना, बट हमको तो फिर वैसे चाहिए ना कि टैक्स ही ना लगे और बिना टैक्स का प्रॉफिट पैसा चाहिए ना, वो कैसे करेंगे यूएई से? दोस्त टैक्स तो बच ही नहीं सकता. ऐसा नहीं है कि आप टैक्स फ्री इनकम ले लोगे. ओईसीडी के होते हुए, पिलर 2 के होते हुए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग लॉज के होते हुए हम ग्लोबली नॉन टैक्स इनकम जनरेट कर लें, ये तो हो ही नहीं सकता. टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते भेजोगे, मैं करूंगा, तो हो. 8 तक भेजोगे तो मेरे को भी टाइम एट लगता द है एंड अगर आप एक धंधे से पैसा कमा के जेब में डालना चाहते हो तो वो बिना टैक्स के तो नहीं डल सकता. ठीक है. बाकी तैयार है, सेल और तैयार सर है, तो अगर सेल सैलरी भेज दो, निकालेंगे, मुझे सेल सैलरी पहले करानी है. निकालेंगे तब भी होगा ना सर? किशन गुप्ता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सर सैलरी निकालेंगे भेज तब दो, भी टैक्स भेज दो. लगेगा ना इंडिया में? बिल्कुल लगेगा. और तो फिर अपनी हम बैंक फिर स्टेटमेंट भी क्या भेज दो, तरीका, अपनी कैपिटल से ले आए वो पैसा रिटर्न इंडिया करनी में? है. संकेत, आई कैन टेक अप ऑल द और क्वेश्चंस एक एट बार द मेरे पास बता दो कब आ सकते हो, 20 जुलाई से 25-26 के बीच में. किशन गुप्ता जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज म्यूट कब कर आओगे? लीजिए. जी. आई हैव म्यूटेड हिम. Now, these are the timelines and approximate cost for incorporating a company in these countries. So, US is the cheapest and easy. If we discuss about the bank account opening, in US, the bank account opening is very easy to medium with no visit required. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लास्ट स्लाइड कंप्लीट हो गया था क्या? एक बार प्लीज चेक No, I'm just coming to that. So, these are the approximate cost for a B2B thing that would be incurred in opening the companies. UAE company is most expensive, and all these expenses more or less have to be spent every year. And there are various things that you get in this. For an example, for US, there's a mandatory registered agent that you want. You will get a registered agent, you will get a registered office address, you will get a post mailbox where all your couriers will be received and dispatched to you. You will get company incorporation services, you will get your MOA, AOA drafted, you will get a stock certificate from US authorities. This is what you get for US. For UK also exactly similar to US, registered office agent, a registered agent, registered office address, MOA, AOA, company incorporation. In Singapore, there are two mandatory requirements. One is that you have to have a company secretary there and a local Singapore director. Both are available on rent. They sign all the documents after vouching their legitimate activity.
but both of them call. एडिशनल का क्या मतलब? एडिशनल कह रहे थे ना कि ये तो एडिशनल है। दीपक कुमार जी। So the mandatory requirements in Singapore are a company secretary and a local resident director. So you get both of them included in this, and the major expense is of local Singapore director, which is close to 2 to 2.5 lakh. So if you have a local Singapore person and you don't need a Singapore person from me, it will substantially reduce to 2.5 lakhs. Then in UAE, you will see many Instagram posts which will tell you that we will incorporate your company in 2 lakh or 2.5 lakh rupees. It is a trap. Don't go after it. They will just seek advance from you for 2 to 2.5 lakh for just company incorporation. There are 7 things in UAE which are mandatorily required, which are not included in this 2 to 2.5 lakh fees of Instagram post. Ask them a full-fledged quote in a written form on an email, and you will receive a similar cost of INR 5.5 to 7 lakhs. There are various free zones, Ajman, Ras Al Khaimah, Sharjah Media City, Shams. So the cost of company incorporation is totally aligned with the choice of your free zone. Recently, people are incorporating company in Indonesia as well. So I have not included it here, but that costs around 8 lakh rupees INR, Indonesia. Now, how to decide on these is an interesting thing. So जिन क्लाइंट्स को सिर्फ MNC का स्टेटस चाहिए और अभी उनके माइंड में नहीं है कि उनको बिजनेस क्या करना है क्या नहीं, उनको सिर्फ अभी लेगेसी क्रिएट करनी है, वो लोग यूएस और यूके के साथ जाते हैं, बिकॉज दे गेट अ फॉरेन कंपनी, जल्दी खुल जाती है, पैसे भी कम लगते हैं, एंड डूइंग बिजनेस इन दीज कंट्रीज इज ऑल्सो एन ईज. बट जिनके माइंड में क्लियर प्लान होता है, जो वैल्यूएशन करना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं, दे प्रेफर सिंगापुर कंपनी, बिकॉज यूजुअली the startup investor community, they love Singapore, they are based in Singapore. So Singapore is an edge for those startups or clients which have vision of raising valuation. So I will discuss about one of our clients, Exim Routes. They are into waste paper trading company. We have been advising them since 2018. It was a small proprietorship firm in Sri Ganganagar. We advised them. We incorporated their Singapore company in 2018. We incorporated their US, UK, UAE, Germany, Sri Lanka, and South Africa. We opened their 8 to 9 companies. They were doing turnover of around $1 million in 2019. Today, they are doing USD 18 million. $18 million they have reached by help of these local companies. They redeemed the local companies. They gained more suppliers, more customers in these jurisdictions, and today they are in the process of bringing an SME IPO. And the investors are so happy seeing the corporate organization structure, that it is an Indian headquartered group which has the subsidiaries outside India, and they are being valued at more than 300 crores. So this answers one question, that what is the benefit of having foreign companies in the group. Now, how easy it is to open a bank account outside India. In US, it is easy to medium, no visit required, but it would be a digital bank. सर कौन सी बैंक में करवा रहे हो यूएस में? मर्क्यूरी हो सकता है, रीगल हो सकता है, वाइज हो सकता है. सर वाइज तो बैंक ही नहीं है ना, वाइज तो वो है पेमेंट गेटवे. सर लोग लेते हैं वाइज में भी. नहीं It is बट not उसमें a, तो मैंने फिर पहले बैंक बोला, it would be a digital bank, it would not be a full-fledged bank. नहीं, बट वाइज में तो फिर अपने को इंडियन बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसको. हाँ, तो उसमें आरटीजीएस आएगी, स्विफ्ट नहीं आएगी. नहीं आरटीजीएस स्विफ्ट नहीं आएगी, बट वाइस में जो some अकाउंट होगा वो तो वॉलेट में आ जाएगा ना. some clients want कि हमारी कंपनी खुले और हम एक बार हाथ की हाथ बिजनेस स्टार्ट करें.
सो वो लोग एक बार वाइज के साथ जाते हैं, इन द मीनवाइल उनका बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है ताकि उनकी ट्रांजेक्शन होल्ड ना हो। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यूके में यूजुअली इट इज रेवोल्यूट एंड HSBC we can also go. But for HSBC, you will have to open your relation in India first, and then they will recommend you to their HSBC UK branch. Singapore, there is UOB. Aspire is the fantastic bank, just $8 per transaction bank charge. It is the least around the world. OCBC, Stancy, and UOB are difficult. Aspire and HSBC is easy. HSBC again would require your Indian relation with HSBC India. UAE, there is Mashreq, Abu Dhabi Bank. This is the list. Then these are the foreign company. So whatever we discussed till now was in relation to what is happening outside India. When you incorporate a company outside India, there are compliances in India as well. There are many compliances. Primarily, there are two. Sorry, one is that you have to repatriate the share capital. You have to subscribe the share capital. When you subscribe the share capital, it becomes overseas direct investment, which comes under automatic route of RBI. So there is no time lag involved apart from the banking timeline of 5 to 15 days that they take in vouching all the documents. Once you make an ODI, you have to file a APR, annual performance report. By the end of December every year for a financial year. So you have to draw, if you follow a calendar year in your foreign company books of accounts, you have to draw up a provisional financial statement for April to March, and you have to file an annual performance report of the money that you have repatriated to India. How is it performing? Basically, if you invest $1 lakh, what profit did the foreign company earn? And now the reserve surplus amount is this. It is a simple compliance, but a technical one in terms of RBI and FEMA is involved. Then you have to, its due date is 31st December every year. Then there is foreign liabilities and assets information return, which is called FLAIR. Its due date is 15th of July every year. It is also filed on the financials based on April to March. You can file it on provisional basis by 15 July, but you have to amend it with the signed balance sheet as well because it has been uploaded on RBI portal. It is exempt for all the companies which are owned by individuals. FLAIR ODI is applicable on all. It is applicable on all shareholders, but FLAIR is applicable only on non-individual shareholders. It is not applicable on individual shareholders. सर अगर ODI नहीं कराएं तो क्या होगा? 7500 रुपए की वन टाइम पेनल्टी है और परसेंटेज में इतनी है कि कंपनियां बंद करनी पड़ेंगी सारी। नहीं, अगर पता ही नहीं चले, मान के चलो कि किसी ने 1-2 साल बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कराते ही नहीं ना ODI को। आप देखो, एक तो तरीका ये है कि हम ITR फाइल ही ना करें, किसको पता लग रहा है, जिस दिन पता लगेगा। तो पहला तरीका तो यह है कि हम शेयर कैपिटल ही सब्सक्राइब ना करें। अगर हम शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं करते तो देयर आर चांसेस कि किसी को पता ही नहीं लगा कि हमने बाहर कंपनी खोली है। बट आपको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना होता है कि आपकी कोई कंपनी है क्या बाहर, चाहे आप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करो या ना करो। तो जब आप इनकम टैक्स में रिपोर्ट करते हो तो यू लेफ्ट द फुटप्रिंट्स इन द टैक्सिंग सिस्टम्स कि आपका कोई ना कोई एसेट है बाहर। अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो RBI को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इनकम टैक्स को पता चल चुका है तो कहीं ना कहीं से RBI तक पहुंचेगी बात। दूसरा, जब आप ODI कर देते हो, तो जब आप ODI करते हो तो बैंक को एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है RBI के साथ कि बैंक ने किस किस कस्टमर का पैसा बाहर भेजा, किस किस वजह से। तो जब बैंक RBI को रिपोर्ट करेगा तो RBI से आपके पास अपने आप नोटिस आ जाएगा कि आपने APR फाइल नहीं करी है। और आपका इसमें एक और मैं एक क्लाइंट का इशू बता देता हूं। अभी रिसेंटली वी हैड टू लीव दैट क्लाइंट को हम 4 साल से बोलते रहे कि आप
शेयर सब्सक्राइब कर लो, आप ओडीआई कर लो, आप शेयर सब्सक्राइब करके ओडीआई कर लो। क्लाइंट ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए ना ओडीआई की, ग्रुप की वैल्यू बन गई बुक वैल्यू अराउंड 80 करोड़। अब जब उसको ओडीआई करनी थी, आरबीआई की कुछ कंप्लायंसेस चेंज हो गई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 आई थिंक, और 1 जुलाई 2023, जिसकी वजह से जो बुक वैल्यू थी उसको भी कंसिडर करना था। अब उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 12 करोड़ रुपए का। नाउ क्लाइंट इज सेइंग कि आपने हमें बताया नहीं करने के लिए। वी हैव प्रॉपर ईमेल्स, वी हैव मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट एज वेल, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कि आपको ये ओडीआई करनी है। अभी जैसे आपने पूछा कि कई लोग नहीं करते हैं, तो मैं वो एग्जांपल जरूर कोट करता हूं जिन्होंने ओडीआई नहीं करी है, कि उनके साथ आरबीआई क्या करने वाला है। और एलएलसी में भी करनी मैंडेटरी है क्या? एलएलसी में भी मतलब काफी लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सर एलएलसी बनाई ओडीआई नहीं। तो आई हैव रिटन ऑन ऑल, ओडीआई एपीआर इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, देयर इज नो हाँ, एग्जेम्पशन। बट अगर मान के चलो कि किसी ने कैपिटल सब्सक्राइब ही नहीं करी है, तो फिर उस केस में तो नहीं सब्सक्राइब करेगा ना करी वो। ही नहीं है, तो जो अभी एक क्लाइंट के साथ हुआ वही होगा। अब वो कर ही नहीं पा रहा, उसको इन्वेस्टमेंट रेज करनी थी, एसएमई आईपीओ लाना था, सारा एक्सपेंशन प्लान खत्म हो गया है। मतलब प्रॉपर जो जेन्युइन वाले क्लाइंट है उनको उनको मतलब दे हैव टू डू दैट, एंड वो जो जो बस टेस्ट के लिए खुलवा रहा है उसको करेंगे। एग्जैक्टली। फ्लेयर इंडिविजुअल शेयर होल्डर बच जाता है फ्लेयर से। फ्लेयर इज अ नॉर्मल कंप्लायंस, उसकी फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब इट इज जस्ट अ 25,000 रुपीज एक्सपेंस टू कंप्लाई विद फ्लेयर। और एपीआर की कॉस्ट लगभग 50,000 से 1 लाख आती है, बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व। एंड देन देर इज वन मोर थिंग, व्हेन यू ओपन अ कंपनी एंड सब्सक्राइब टू ओडीआई, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल। सर वो डीमैट भी तो कराने पड़ेंगे शेयर्स को अब तो। नहीं, कुछ नहीं कराना पड़ेगा, वो तो अभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे आप, तो इसलिए आपको 30 सितंबर तक वैसे भी कराने हैं। तो जैसे ही आप एमएनसी ग्रुप बन जाओगे, आपके ऊपर वो तो एनएसडीएल सीडीएसएल की डिपॉजिटरी की रजिस्ट्रेशन आपको वैसे भी करानी पड़ेगी। तो दीज आर द 3 थिंग्स विच विल बी एप्लीकेबल। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और आती है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं और आपकी मैनेजमेंट जहां बैठी है, उसका बहुत रोल रहेगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट में। सर ओडीआई के लिए आपने बताया तो एवरी ट्रांजैक्शन जब भी एग्जीक्यूट होती है वाया बैंक, एवरी टाइम वो ओडीआई के फाइनेंशियल मोड ईयर से ही में होती जितनी है। भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसकी आपको एपीआर 31 दिसंबर तक फाइल करनी है। और ओडीआई? सर ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जब आप पैसा भेज रहे हो ओडीआई आपको तब फाइल करना है, एक बार वन टाइम। उसके बाद उसकी एपीआर फाइल करनी है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एवरी टाइम जब भी कोई पेमेंट, जब भी कोई अमाउंट इंडिया से बाहर जा रहा है, ओडीआई के मोड से ही जाएगा या वो वन टाइम फाइलिंग है ये? डिपेंड करता है कि वो किस चीज की पेमेंट है। अगर आप एडवांस अगेंस्ट इंपोर्ट कर रहे हो किसी सप्लायर को पेमेंट, तो वो ओडीआई नहीं है, इट इज अ नॉर्मल नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हो गया जो अपनी सब्सिडियरी कंपनी है ओवरसीज, उसको दे रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, हमेशा उसके ओडीआई ऑपरेशन के लिए ओडीआई एवरी टाइम ओडीआई से जाएगा। फाइल होंगे। ओडीआई में वेरियस हाँ। ट्रांजैक्शंस आती हैं, पर्पस कोड आता है, हर बार डिफरेंट पर्पस कोड होगा। फर्स्ट टाइम तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ही होगा, हाँ, सेकंड यस, टाइम करेक्ट। could be loan also, थर्ड टाइम इट कुड बी यू आर पेइंग अगेंस्ट अ सैलरी सर्विस। टू ओवरसीज। में ओडीआई नहीं लगेगा, इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इट इज अ क्वैट। ओके। और वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वहाँ की जो लोकल एक्सपेंसेस हैं ओवरसीज ब्रांचेस की, उनके लिए जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, वो इनवॉइस के अगेंस्ट होगा ना ट्रांसफर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ओडीआई में नहीं आएगा। बेसिकली इफ यू रिमेंबर, तो फेमा में एक कैट और क्वैट हुआ करती थी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और क्वैट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो जितनी कैपिटल करेक्ट, हाँ। अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं वो ओडीआई रूट में अरे है, जो क्वैट्स हैं वो ओडीआई रूट में बोलो, नहीं है। आपके सर से बात हो गई है। हाँ बोलो, आपके सर ने। कोई भी एक्सपेंस जो ओवरसीज ब्रांच के लिए हो रहा है, उसके लिए अगर इंडिया से होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को भेज रही है, वो एक्सपेंस करेगी ओवरसीज ब्रांच ही, उसको भी अपने ओडीआई के थ्रू मूव करते हैं, और वो सिंपल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अगर आप उसे एज एन इनवॉइस कर रहे हो। बेसिकली आपकी सब्सिडरी जो है वो आपसे पैसे मांगेगी ना किसी इनवॉइस के साथ ही। इनवॉइस के साथ भी मांग सकती है और एक एडहॉक भी मांग सकती है फॉर ऑपरेशन अगर एक पर्पस। स्टॉक मांग रही है तो आप उसको एडवांस दिखा के करो रिपैट्रिएट। और इसका कोई लिमिटेशन भी है अमाउंट की? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सर ओडीआई पॉइंट क्लियर हो गया।
एपीआर क्लियर हो गया। फिर आपने एक बताया फ्लेयर, फ्लेयर भी एवरी ईयर 15 जुलाई को फाइल होता है। करेक्ट, और 15 इसकी फाइलिंग का आपने प्रोविजनल बेसिस पे। अगर साइंड बैलेंस शीट है तो फाइनल कर दो, वरना प्रोविजनल पे 15 जुलाई को तो फाइल करना ही है। और उसके बाद जब साइन हो जाए बैलेंस शीट तो वो अमेंड करके अपलोड करनी है। ओके, थैंक यू। सर पोस्ट ये जो परमानेंट, सर एक इसमें एक क्वेरी और थी मेरी। जी। ये जो आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला बता रहे हो ना, देखो 99% इंडियंस क्या कर रहे हैं कि बाहर कंपनी खोलते हैं अपनी, ठीक है, और बैठते यहीं पे हैं, जाते ही नहीं है मतलब कोई नहीं जा रहा वहां पे, और यहीं से बैठ के सारी सर्विस दे रहे हैं, बिलिंग बस वहां से कर रहे हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर केस में टेक्निकली क्या है कि जितनी मेरी समझ है मतलब टीपी की, तो अगर वो कंपनी वहीं पे है जैसे बाहर किसी भी कंट्री में, सिंगापुर वगैरह, और वो कंपनी वहीं पे टैक्स दे रही है लोकली, तो क्या है कि वो वहां की टैक्स रेजिडेंट हो गई, ठीक है। मगर फिर भी क्या है कि अगर वो कंपनी किसी यहाँ की कंपनी को बिलिंग करती है, तो यहाँ की कंपनी उसका टीडीएस काट लेती है, विद होल्डिंग काट लेती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, और वो कहती है कि भाई तुम्हारा पी एस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मैनेजमेंट यहाँ बैठ रही है। तो उसमें मतलब वही बेसिकली मैं देसी भाषा में एक चीज हमेशा समझाता हूँ कि जो ग्रुप है उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके पीछे का ब्रेन कहाँ बैठा है। ब्रेन एक फिजिकल चीज है, बॉडी पार्ट है, तो वो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सर? सर उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? उसको अवॉइड करने का मैं स्टार्टिंग में तरीका बताया करता था जब मैंने ये काम शुरू किया था, कि आप क्वार्टरली एक ट्रैवल जरूर करो। आप जो बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो उस कंट्री में एग्जीक्यूट करो। योर मैक्सिमम डिसीजन शुड बी टेकन देयर, यू शुड हैव अ लोकल प्रेजेंस देयर। उसका या फिर स्कोप एक होना चाहिए। वो बना ले, सीईओ बना ले वहां पे, जो डिसीजन मेकिंग करता रहे वहां बैठ के, आई मतलब विल नॉट दिखाने के लिए। एक्सेप्ट द वर्ड सूडो सीईओ इन द सेशन। सो नहीं आप नहीं, सीईओ अपॉइंट करो वहां पर। सॉरी। आप सीईओ अपॉइंट करो वहां पर, सूडो क्यों? अरे मतलब सीईओ अपॉइंट करेंगे, बट उसको हमें बनाना नहीं है ना सीईओ, बस डेजिग्नेशन देंगे ताकि हम इसकी डेफिनेशन से बाहर निकल सकें। ये मैं आप वैसे एक्चुअल बोल सीए वाली प्रैक्टिस में चले गए। नहीं नहीं सर, तो देखिए मैं प्रैक्टिकल इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि बताएंगे किसी को तो तभी तो फायदा होगा, क्योंकि उसको बोल देंगे तेरा 20% टैक्स लग रहा है तो कौन आएगा फिर? एज अ प्रोफेशनल, एक विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एक चीज होती है, हमें करनी वही होती है। उसके अलावा जो भी है उसका रेपरकशन जो है वो ना मैं बता सकता ना कोई और बता सकता। उसका रेपरकशन जो भी होगा वो होगा। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ कि फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ में क्या कर सकते हो। ठीक है। तो आई सर थिंक ट्रांसफर प्राइसिंग को एक बार क्लियर कर दीजिए खाली। सर ट्रांसफर प्राइसिंग पे छोटा सा, वैसे so we have to close this session at 6 sharp, otherwise I will take 5 minutes for transfer pricing as well. I think if all the participation, I think there is no issue, then we can definitely go. यस प्लीज सर। So basically सर ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपनी रिलेटेड पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, सरकार को लगता है वो एक डूबियस ट्रांजैक्शन है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं 10 साल से इसी एग्जांपल को घसीट रहा हूं, मैं आज भी वही देता हूं। सो सपोज मेरी जूते की ट्रेडिंग की दुकान है, आई सेल शूज। मेरे से कोई मुझे वो 100 रुपए का पड़ता है जूता, और मैंने वो जस्ट वो शूज मुझे 100 रुपए का पड़ता है, और मैं वो लोकल मार्केट में नॉर्मली मेरे पास कोई आता है तो उसे 200 रुपए का देता हूं, और मुझे प्रॉफिट होता है 100 रुपए का। मैं उस पर 30% टैक्स देता हूँ, 30 रुपए। अभी वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, माय फर्स्ट कजन कम्स टू माय शॉप और बोलता है यार मुझे डिस्काउंट दे दे। तो मैंने वही 100 रुपए वाला जूता जो मैं 200 में बेचता हूँ, मैंने वो 100 वाला 150 में बेच दिया। मुझे प्रॉफिट हुआ 50 रुपए, मैंने 30% टैक्स पे किया 15 रुपए। जब मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन करी थी तो सरकार को मिले थे 30 रुपए। सरकार को अब मेरे फर्स्ट कजन की ट्रांजेक्शन पे मिले 15 रुपए। सरकार कहती है टू हैक विद योर, व्हाई शुड आई बियर द लॉस ऑफ यू डूइंग बिजनेस विद योर रिलेटेड पार्टी। सरकार कहती है मैं ये मानूंगी जो तुमने अपने कजन के साथ ट्रांजेक्शन करी है वो ट्रांजेक्शन 200 रुपए की हुई है, तुम्हें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और तुम्हें 30 रुपए का टैक्स देना। हाँ सही, कर हाँ पहले कर लो कर लो। जी सुनील जी, सुनील जी। ओके, तो जो मटेरियल हमने अपने रिलेटेड पार्टी में से अपने सब्सिडरी को सेल किया, सेम मटेरियल हमने ओपन मार्केट में क्या रेट पे सेल किया है उसको कंपेयर Exactly, करते हुए उसकी प्राइस को कंसिडर किया जाएगा। exactly. अब अगर इस कंपैरिजन से सरकार का नुकसान हो रहा है
तो चैप्टर 10 सेक्शन 92 की सीरीज एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर इस कंपैरिजन से सरकार का नुकसान नहीं हो रहा, सपोज आप अपने कजन से प्यार नहीं करते और आप मार्केट में तो 200 रुपए का बेचते हो, बट आप अपने कजन को 250 रुपए का बेच दिए, तो सरकार कहती है अब मुझे नहीं पता ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, मेरे को पता ही नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है। सो सेक्शन 92(3) कहता है इफ द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट देन इग्नोर वट एवर इट इज रिटन इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, वो जो कजन से प्यार नहीं करते हुए 250 पे बेचा, वो तो फिर बेंचमार्क नहीं बन जाएगा? नहीं, वही बोल रहा हूं ना, सरकार फिर कहती है कि भूल ही जाओ ट्रांसफर प्राइसिंग नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर। तो टीपी तो करानी पड़ेगी सर फिर भी। सर एप्लीकेबल ही नहीं है ना, वो तो टीपी आपको करानी पड़ेगी बेंचमार्किंग के लिए, वो तो आपकी कंप्लायंस है, दैट इज अ हाँ तो कंप्लायंस ऑफ 3CEB। अरे तो 3CEB तो भरनी पड़ेगी फिर भी, मतलब ठीक है अपने पे वो नहीं लगेगा, अपन उससे बाहर हो जाएंगे, बट जो कंप्लाइंस है उसकी तो कॉस्ट आएगी ना। हाँ, 3CEB की तो कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। 3CEB हैज टू बी डन इफ यू हैव अंडरटेकन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हम्म। हाँ जी गोविंद जी। जी हाँ जी गोविंद जी, सुनील बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने वाला था, मैंने चैट बॉक्स में भी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। जी, मैंने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाला है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो आपने चार्जेस वाली या कॉस्ट वाली स्लाइड दिखाई थी, इट इज फ्रॉम प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, लाइक यू आर प्रपोजिंग बिफोर ऑल द प्रोफेशनल, और इट इज फॉर द एंड क्लाइंट? सर ये सेशन मैंने सेल के लिए नहीं लिया था, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया देने के लिए लिया है। हम्म। कॉस्टिंग बेस्ड ऑन आवर बिजनेस रिलेशन वी कैन डिस्कस ऑन सेपरेट बेसिस। नहीं नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, वो जो आपने जनरली चार्जेस बोले हैं, ये नॉर्मली क्लाइंट को, एंड क्लाइंट को जाते हैं इतने चार्जेस, या प्रोफेशनल को जाते हैं? आप मुझे ये तो क्लेरिफाई करिए। उसमें सर मेरा मार्जिन इंक्लूडेड है, उसके बाद अच्छा आप क्लाइंट से कितना रिकवर कर पाते हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, और मैं मेरा मार्जिन भी रिड्यूस कर सकता हूँ। सर, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है इसमें? आप अपना जो है ये फॉरेन कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेशन पहली में, फॉरेन कंपनी 2017 में खोली थी। अच्छा, तो ऑलरेडी 7 ईयर से आप कर रहे हैं सर? मैं सर 300 के आसपास टोटल फॉरेन कंपनीज खोल चुका हूँ 15 Excuse me, ठीक sir. कंट्रीज। है। Excuse me, sir. ठीक है सर, ठीक है। सो Uh, आई कनेक्ट विद यू सेपरेटली। so थैंक यू। Sunil ji or any other participant, I request गोविंद जी everyone अपना to नंबर दे दीजिए। please refrain It is in asking the such end, type of so questions. I will just come to it. श्योर The श्योर last सचिन जी। this is the last technical slide, और उसके बाद हम बातें कर सकते हैं। Please let Govind ji complete the session. Then you are free to contact him. And of course, please refrain asking all such type of questions here in this forum. Sorry नोट, for inconvenience, नो नो Govind नो, ji. वेरी वेल नोटेड सर, वेरी वेल नोटेड। Thank you, sir. Thank you so much. देन थैंक यू। देयर इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस, जो खर्चा है वो एनुअल है। यूनाइटेड स्टेट्स में देयर इज नो ऑडिट रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट साइन बैलेंस शीट को ही ऑडिटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। प्राइवेट कंपनीज इन यूएस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन एनुअल स्टैट्यूटरी ऑडिट अनलेस इट्स स्पेसिफाइड इन देयर बाय लॉज। कुछ कंपनीज जो हैं जो एक लोकल यूएस रेजिडेंट को उठा के कंपनी खोलती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम बिजनेस करके हमें कमा के दो, वो कंपनीज चाहती हैं कि ऑडिट हो, तो वो अपने एओए में लिख देती हैं कि इसका ऑडिट होना चाहिए फ्रॉम अ सीपीए इन यूएस, तो दैट कैन बी डन ऑन रिक्वेस्ट, बट यूजुअली इट इज नॉट एप्लीकेबल। यूके में इट इज एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सिंगापुर में इट इज एप्लीकेबल आई थिंक ऑन मोर देन एसजीडी 10 million turnover. UAE में there is no audit depending on the free zone you choose. Usually it is not there. So these are the things that are most important for a foreign company incorporations, which I have just discussed. These are my contact details. You can take a screenshot, or team CASA can share it with you. And now we can discuss everything. First, you can note down my contact details. The reason behind naming it as Left Brain Hotshots Consulting is that we all analytical people. So there are two brains in a human body, left brain and right brain. All the analytical people are dominated by their left brain, and creative people are dominated by their right brains. And hotshots means Nipun. So I chose this name. So while I was doing CA, I had this name in my mind, maybe 15 years back. And when I got an opportunity to open my own business consulting firm, I named it Left Brain Hotshots Consulting. So, if any participants has any question,
Please unmute yourself and yeah. सर ये प्रॉफिट दुबई में रिपेट्रिएशन पे थोड़ा, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन पे एक बार थोड़ा सा डिटेल बताएं, कैसे वो लिया जा सकता है और क्या पूरा लीगल मोड फॉलो करनी चाहिए क्लाइंट को पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट रिपेट्रिएशन पे। सर सर प्रॉफिट मैनेजमेंट फीस रिपेट्रिएशन के तो ले लिए सकते हैं ना? where is that slide? प्रॉफिट ये मैन रिपेट्रिएशन के दो तरीके हैं। एक तो यूजुअली क्या होता है, जो इंडियन हेडक्वार्टर्ड ग्रुप्स होते हैं उनके सीईओ सी सूट जो है वो इंडिया ही बैठते हैं, तो मैनेजमेंट इज इन इंडिया मेजरली। तो आप अपना मैनेजमेंट फी का एक इनवॉइस रेज कर सकते हैं अपनी फॉरेन कंपनी को, जिससे आप प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिपैट्रिएट कर सकते हो, जिसपे आप इंडियन टैक्स इंडिया में इनकम रिटर्न करके यू कैन पे टैक्सेस ऑन दैट। Another one is that you bring dividend. Next is that if you have given a loan to your subsidiary, you can take interest on that loan. This will require a specific benchmarking with respect to transfer pricing. So the easiest way is the first and second, dividend and a management consultancy fee. और इन सब में जो इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी यूएई या किसी भी अदर कंट्री में है, वो नॉर्मल डिविडेंड टैक्स यहाँ पे इंडिया में देगी डीटीए के अंडर। Exactly. There is a section of series 115 I'm forgetting. उसमें जिस इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग मोर देन 26% है किसी फॉरेन कंपनी में, उस पे डिविडेंड टैक्स सिर्फ 15% ही है। तो फिर यूके में भी तो रिटर्न भरना पड़ेगा सर। जैसे मान के चलो मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ भरना यूके में, पड़ेगा, है ना, और मेरे को वहां से डिविडेंड मिला, तो फिर मेरे को वहां पे भी रिटर्न भरना पड़ेगा फिर। बिल्कुल भरना पड़ेगा वहां का टैक्स क्रेडिट बेनिफिट लेने के लिए। सर ये और यूएई का बताओ सर कि यूएई का होल्डिंग बेनिफिट क्या है? मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, हम जब से यही डिस्कस कर रहे हैं इंडिया होल्डिंग बाहर सब्सिडरी, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। आप बाहर होल्डिंग बना सकते हो, इंडिया में सब्सिडरी बना सकते हो, इट इज टोटली परमिसिबल। सर एक पॉइंट इसमें था, जैसे यूएई में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर इंडिया के प्रमोटर्स कोई उसके हों वो ज्यादा इजी है, और इंडिया की कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी खोले वो ज्यादा इजी है, और सेम बेटर क्या है दोनों में? बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की और होल्डिंग सब्सिडरी है, इसके लिए स्टेब्लिश करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? 20 मोर देन 26% की आपको होल्डिंग और शेयर समथिंग। तो नॉर्मली सब्सिडरी की डेफिनेशन है दैट 51% से ज्यादा हो तो आप उसे सब्सिडरी बोलते हो, अदरवाइज अगर मैनेजमेंट फीस लेते हैं दुबई से, तो भी वो इंडिया में तो टैक्सेबल लगेगा ही उसका। बिल्कुल होगा सर। आप टैक्स क्यों सेव करना चाहते हो इतना ज्यादा? इतने तो बढ़िया फिर शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है यार इंडिया का। सो I will share one personal experience. I was in USA for the whole month of October 2023. Believe me, guys, I didn't find anything exciting that is not available in India. I did not find anything that is lacking. I really cherished when I landed in India. And we should be paying as this economy, we should be motivating clients for paying more taxes. There is a reason I'm not being a good human or a good chartered accountant. Whenever you pay tax, you book more income. And in today's era, every business is valued. There is an enterprise valuation of every business. So every rupee of tax that you pay, you get a 20 or 25 times valuation done for that one rupee of tax. सर एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट, फिर मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एक ये बताओ सर, बस मेरे को वो डाउट रहता है थोड़ा कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ, मैंने अपनी दुबई में कंपनी खोली और मैं इंडिया में मेरी चल रही है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सर थोड़ा अब मैंने आप एक इंडिविजुअल हो, आपने दुबई में कंपनी खोली, हाँ, और इंडिया में मेरी चली रही है अपनी कंपनी, मान के चलो ओपीसी चल रही है, जैसे भी आप मान के चलो। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरी दुबई कंपनी में 5 लाख एईडी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैंने वो प्रॉफिट शेयर कैपिटल के रूट के थ्रू इंडियन कंपनी में डलवा लिया, ठीक है, मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब उसके बाद में मैंने वो यूएई की कंपनी बंद कर दी, उसमें जो भी लोअर पोस्ट दिखा के जैसे भी करके उसको क्लोज डाउन कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई, तो उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन थोड़ी होगा इंडिया के अंदर। सर जो आपने बोला ना, आपने पहले एक दुबई खोली फिर दुबई की सब्सिडरी इंडिया में खोली, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। नहीं 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 नहीं, सब्सिडरी नहीं खुलनी है। अरे भैया एक आदमी है, उसकी 2 अलग अलग कंपनी है, एक दुबई में है एक इंडिया में है। दुबई की कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया एज ए एफडीआई के रूप में, उसके बाद में दुबई की इन्वेस्टमेंट करोगे कंपनी तो बंद वो कर दी। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट बन गई ना। हाँ, दुबई की कंपनी फिर बंद कर देंगे। दुबई की दुबई नहीं, तो आपने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन इन्वेस्टमेंट्स। आपसे दिमाग लगाने से पहले आरबीआई ने पहले ही लगा लिया और इसे बैन कर दिया।
नहीं, किसी और के नाम से खोल देंगे यहाँ पे वो कंपनी। तो आप कर ही सकते हो, तो जब मर्जी करते रहो किसी और हाँ के तो नाम और पे, फिर फिर तो नहीं, भले वहां पे बंद कर देंगे कंपनी को, तो फिर यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन तो नहीं आएगा उसका। एपीआर में दिखाओगे ना उस पैसे का करा क्या, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट फाइल करोगे, उसमें दिखाओगे इस पैसे का करा क्या, उसमें लिखोगे एक इंडियन कंपनी में फाइल करा था, और फिर चिट्ठे खुलेंगे। तो लॉस भी दिखा देंगे, चलो वो तो हो जाएगा। सर एक जब कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं फॉरेन कंट्री में, यूएई कोई मैं पकड़ूं अगर, तो कंपनी की होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, सब्सिडरी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं यूएई में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी के बिहाफ में? दैट वी कैन डिस्कस सेपरेटली, मतलब वो लिस्ट है हर कंट्री की अपनी अपनी। अच्छा, तो दूसरी पॉइंट जो जब भी कोई मटेरियल इंडिया से यूएई ट्रांसफर हुआ, सेल हुआ सब्सिडरी कंपनी को, और मेनलैंड में अगर वो मेटल इंपोर्ट हो रहा है तो उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी है यूएई कंपनी को, और वहाँ का वैट भी पे करना है। उसी मटेरियल को जब यूएई से फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो कस्टम ड्यूटी की उनको भी बेनिफिट मिलती है, जैसे इंडिया में डबल एडवांस ऑथराइजेशन यूज होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैच करने के लिए, और वैट की क्रेडिट मिलती है वहां भी सेम इसी फॉर्मेट में। सर इट इज अ टैक्स क्वेरी विच रिक्वायर्स अ रिटन ओपिनियन। मैं आपको ऐसे वर्बली तो बोल सकता हूँ कि हाँ मिलेगा, वैट का डेफिनेटली मिलेगा, कस्टम ड्यूटी पे रिस्ट्रिक्शन है, तो बट मतलब वो एक बार मेनलैंड में इंटर हो गया तो वो उसकी कॉस्ट बन जाती है, और अगर वो एक्सपोर्ट पे जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कस्टम ड्रॉबैक या ड्यूटी ऐसा कुछ है? कॉस्ट बन जाती है, इंडिया की तरह ही है, कस्टम ड्यूटी कॉस्ट बन जाती है, वैट रिफंडेबल है। ओके, और इंडिया के तरह जैसे एडवांस लाइसेंस यूज होकर के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में इंपोर्ट ड्यूटी फ्री मिलती है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट भी है वहां पे? कस्टम्स टीम इज सेपरेट, रवि जी और ओके। निशांत जी, जिससे भी हुई है, सो दैट इज अ क्वेरी विच द टीम कैन एड्रेस प्रोफेशनली। ओके सर, एक पॉइंट और था, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी है यूएई में, बीट ऑन मेनलैंड और फ्री जोन, दोनों ही केस में कुछ वहाँ के लोकल डायरेक्टर या ओनर की रिक्वायरमेंट है, या 100% ओनरशिप इंडियन प्रोमोटर की हो सकती है, फ्री प्रोमोटर जोन या में इंडियन कंपनी की? 100% अलाउड है, मेनलैंड में भी अब 100% अलाउड है, सब्जेक्ट टू अ थ्रेशोल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। थ्रेशोल्ड, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? अलग अलग है बेसिकली, अप टू 80 तक भी है, सॉरी वो सर, 4 क्लियर नहीं। मिलियन एज तक है। सर ये तो खर्चे के यूजुअली बाद में ऐसा होगा कोई ना सर बंदा ये? कोई बंदा मेनलैंड में कंपनी नहीं खोलता, फ्री जोन में खोलता है। सर थोड़ा गोविंद जी, निशान मेहता जी के यहाँ से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर तो आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप हाँ अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर, आप एक बार थ्रेशोल्ड बता रहे थे, फिर से प्लीज एक बार रिपीट करो। अलग अलग थ्रेशोल्ड है मेनलैंड के, दैट आई डू नॉट रिमेम्बर रेडिली। कोई भी एक एग्जांपल अगर आप बता दें मुझे क्लियर हो जाएगा। गोल्डन वीजा है सर, आई थिंक 8 करोड़ का है, तो उसमें देर इज नो रिक्वायरमेंट, 8 करोड़ आईएनआर की इन्वेस्टमेंट पे। ओके, उसके ऊपर जाते हैं तो लोकल रेसिडेंट की किसी की डायरेक्टरशिप चाहिए। करेक्ट, आई थिंक इट इज 84 मिलियन। और सर ये भी डायरेक्टरशिप की रिक्वायरमेंट है और शेयर होल्डर की लोकल जो? सिर्फ शेयर होल्डर, डायरेक्टर की कोई नीड नहीं है दुबई में, सिंगापुर में चाहिए लोकल डायरेक्टर। ओके ठीक है, और फ्री जोन में कहीं पे भी लोकल की जरूरत नहीं, 100% ओनरशिप इंडियन कंपनी की हो सकती है। करेक्ट, सर बट इसके अलावा सर जब यूएई इंडिया में हम लोग, में यूएई में यू विल हैव टू विजिट। करेक्ट, फॉर फाइनल फॉर्मेशन के किसी में टाइम पे? विजिट की नीड नहीं है, यूएई में विजिट की नीड है कंपनी के लिए। बिल्कुल सर, ठीक है। अंकित जी, यस सर। topic I think we गोविंद जी covered wonderfully, and अगर कोई और है कोई तो ले लेते हैं, सर 5-7 minutes है हमारे पास। चैट बॉक्स में एक दो Please make very concise so that maximum query can be discussed. सर इंडिया, एक पॉइंट और था, इंडिया में जो हम लोग थ्रेशोल्ड फाइल करते हैं, बैलेंस शीट फाइल करते हैं, आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का बता दिया, इसके अलावा और इंडिया में कंप्लायंस और कोई चीज की जरूरत नहीं है जितना आपने लिस्ट ओडीआई, बताया? एपीआर, फ्लेयर, आईटीआर में रिपोर्टिंग, जीएसटी में जब आप इनवॉइसिंग करते हो तो जीएसटी में भी कुछ एक इन्वॉल्वमेंट आती है, स्पेसिफिकली नहीं है, बट आपको कुछ 1 महीने के अंदर कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है कि आपको वो पैसा जो आपने इनवॉइस रेज करा उसका पैसा 30 दिन में आया या नहीं। उसके लिए ओके, लॉ में नहीं लिखा हुआ है, एक कोई बाय लॉ है, बेसिकली सर्कुलर है, जिसमें है कि 30 दिन के अंदर वो पैसा आ जाए रिलेटेड एग्जैक्ट पार्टी।
ओके सर, 26% या ज्यादा की होल्डिंग पे 15% टैक्स रेट है डिविडेंड पे। ये किस सेक्शन पे है सर, अगर बता दें। सेक्शन 115 है। जस्ट अ सेकंड पर एक्सीडेंट, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अंकित जी, आपने चैट बॉक्स की क्वेरीज देखी थी सर? हाँ सर, कुछ क्वेरीज हैं, मैं बस वन फॉर्म अभी ये क्वेरी के बाद वो स्टार्ट कर रहे थे। And reporting on PPT will be shared to everyone. No doubt. Yes, I'll ask for Mr. Govind. Yes. एक 115 BBD है सर। डबल BD। डबल BD। ओके। तो सर, अगर मैं सिर्फ इसको समराइज करूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और अपने कलीग्स के भी, कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, इंडिया में होल्डिंग है और यूएई कोई पकड़ता हूँ मैं, कोई सब्सिडरी है, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद वहाँ पे जो लाइसेंसेस लेनी है, लाइसेंस लेने के लिए फाइनल विजिट हुआ डायरेक्टर्स का, जो उसके डायरेक्टर है, फ्री जोन में कोई वहाँ के लोकल डायरेक्टरशिप या शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, 100% ओनरशिप हमारे साथ हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे 10 लाख INR में ही बोलता हूँ, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया ODI के थ्रू। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ के जो लोकल एक्सपेंस है, बीट लीज, रेंट और वहाँ के जो भी लोकल एक्सपेंसेस हैं, वो उनको इनकर कर रहे हैं, वहाँ की सैलरी खर्चे इनकर कर रहे हैं। यहाँ से हमने जो मटेरियल बेचा अपनी यूएई की कंपनी को, उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग को अप्लीकेबल करते हुए ही हमें सेल करना चाहिए, ना कि उसको टैक्स अवॉइड करने के लिए और उसको अंडर प्राइसिंग करके करनी चाहिए। कंप्लीट कंप्लायंस करते हुए उसको हमने मटेरियल बेचा। यूएई की कंपनी ने वहाँ लोकल मार्केट में या फर्दर ओवरसीज मार्केट में उसने भी जो मेटल सेल किया, इन सारी चीज को करने के बाद वहाँ जो प्रॉफिट बची या वहाँ जो पैसे बचे जो हमने उनको इन्वेस्ट किए थे, उन सारे पैसों को रिपैट्रिएट जब करना है तो उसका 3 तरीका आपने बताया, कि अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो डिविडेंड ले सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैनेजमेंट बैठी है तो उसका प्रोफेशनल फीस चार्ज कर सकते हैं, और अगर एज ए लोन दिया है उनको तो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। प्रेफरेबली डिविडेंड या प्रोफेशनल फीस के फॉर्म में ले सकते हैं। डिविडेंड के लिए आपने बताया कि 15% टैक्स रेट है, अगर 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इंडियन कंपनी की तो 15% टैक्स रेट है। अगर प्रोफेशनल फीस या इंटरेस्ट के फॉर्म में लेते हैं तो वो एक अलग सेक्शन पे गवर्न होगा। सर, वो किस टैक्स रेट पे आएगा या वो किस सेक्शन में गवर्न होगा? इनकम बन जाएगी वो मैनेजमेंट फी। नॉर्मल मैनेजमेंट फीस की नॉर्मल इनकम बन जाएगी। ठीक है सर, इसके बाद जब कभी उस कंपनी का क्लोजर हो रहा होता है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी इंडिया में होल्डिंग है और फॉरेन में सब्सिडरी कंपनी है, उस क्लोजर के टाइम पे भी कुछ सारी फाइन कुछ ध्यान देने वाली कोई बातें हैं? एक डिसइन्वेस्टमेंट का फॉर्म फाइल होगा आरबीआई के साथ, तो जो आपकी लेटेस्ट लास्ट फाइल्ड एपीआर में वैल्यू होगी प्लस योर बैलेंस शीट वैल्यू माइनस डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू 0। सर एक बार रिपीट करें प्लीज। जो भी आपकी लेटेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपकी सब्सिडी फॉरेन एसेट की वैल्यू आ रही होगी प्लस लास्ट एपीआर की डेट से लेके क्लोजर की डेट तक जो भी वैल्यू बनी होगी माइनस डिसइन्वेस्टमेंट में जितनी भी वैल्यू आपने माइनस करी, ओके। ये जो कैलकुलेशन है ये 0 होनी चाहिए। मीन्स जितना एसेट था माइनस कितने में हमने उसको निकाल दिया। करेक्ट। एक तरीके से भी ओके। ठीक है सर, तो थैंक यू। जो चैट बॉक्स की क्वेरीज है गोविंद जी, एक बार वो ले लेते हैं। हाँ, मैं चैट बॉक्स खोलता हूँ। हाँ, एक दीपक कुमार जी की क्वेरी है। शुरू से चलते हैं ऊपर से। हाँ जी। पहली मेरी है, प्लीज अलाउ स्क्रीन शेयरिंग। देन देयर इज सर कॉस्ट बाय शेयर करना प्लीज। संकेत जी, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, आपने नंबर नोट डाउन कर लिया होगा। जी सर, मैं कर लूंगा कनेक्ट आपके बाद में। आशा, फॉर रेजिडेंट इंडियन दुबई कंपनी डिविडेंड विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। बिल्कुल सही है आशा जी, करेक्ट। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट ऑल द स्लाइड देन टॉक। बिल्कुल सर, प्लीज शेयर कॉन्टैक्ट नंबर, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। What docs will be required for filing PAN card application in India of a US based foreign company? उसकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। दीपक जी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम से कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा आपसे पैन एप्लीकेशन के लिए।
then please confirm whatever questions you shown is for professional to be put it as discussed. Fix the margin minimum support system of profit. पवन जी ये नहीं समझा मैं, प्लीज एक्सप्लेन। ये आई थिंक बीच में कभी कोई टॉपिक में इन्होंने शेयर किया। वो middle of the conversation I commenting on that point. जी राइट। अच्छा ओके। I have also one query. आईडी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। एक आशा जी का एक और क्वेश्चन है, प्लीज शेयर सम डिटेल्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेंस। एक ये है पहले दीपक शर्मा जी का, व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट हैविंग फॉरेन कंपनी। सर एक स्लाइड थी पूरी उसके ऊपर, वो डिस्कस कर ली थी। आशा जी का है प्लीज शेयर सम डिटेल्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेंस फीस एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग फॉरेन। मैम जो मैंने फीस बताई है उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और फीस सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको एक एक चीज का चालान मिलेगा। Save my number for connecting for more information. जी सर I बिल्कुल। think these are the only questions. Please share सर एक पॉइंट और है सर, इंडिया में कंसोलिडेशन भी कुछ करना होता है क्या फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी का? बिल्कुल है, इसका फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेशन या ट्रांसफर प्राइसिंग या मेरे सेशन से कोई लेना देना नहीं है। कौनसो तो बने ही बनेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो रिक्वायरमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसको इन्वेस्टमेंट वैल्यू में या तो लेंगे, अदरवाइज पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट। डेफिनेटली कौनसो बनेगी बनेगी। और उसकी फाइलिंग जो होती है 3CD के साथ हम लोग बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो वही बैलेंस शीट होगी, वो सेपरेट है कोई? वही होगी सर। वैसे 3CD में तो अपलोड अलग से होगी क्योंकि स्टैंड अलोन तो मैंडेटरी है, वो तो करनी है एज पर इंडियन पैन। करेक्ट। और वो जो कंसोलिडेशन बैलेंस शीट होती है कंसोलिडेटेड, उसकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है सर? MGT 7 और AOC 4। ओके, ओनली फॉर ROC पर्पस। करेक्ट। और एक फॉर्म FCB फाइल होगा ROC में। MGT 7 एंड AOC 4 एनुअल रिटर्न फाइलिंग। तो रवि जी आप गोविंद जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यस, लास्ट क्वेरी अंकित जी पवन जी से ले लेते हैं। पवन जी क्लास प्लीज आप ले लेते हैं प्लीज। Good evening, good evening to all of you. First of all, very thank you. This is very helpful consent कि आज जो आप लोगों ने हमारे को बताया है काफी यूजफुल था। मेरी एक क्वेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर हम एक इनवॉइस इशू करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर सप्लायर से बाई करा, उसकी प्राइसिंग कॉस्ट है, उसके अंदर हमने प्रॉफिट अपना ऐड करा और उसको उसके रिगार्डिंग हमने इनवॉइस रेज करी। तो क्या कोई पर्टिकुलर मार्जिन फिक्स है कि मान लो मैंने 90 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, उसमें मैंने 1 रुपए का मार्जिन डाला कि और उसको मैंने 91 पे सेल कर दिया, तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया पार्टी को तो 10,000% पे बेचो, सरकार खुशी खुश है। जब नहीं, खरीद रहे हो तो कम पे खरीदना है। ओवर प्राइसिंग की बात है कि कई बार हम प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है लेकिन हम प्राइसिंग उसको कम दिखाते हैं, और वो प्राइसिंग को लूफोल को कम करने के लिए हमारे को जैसे 1 करोड़ की लिमिट है, उसमें 30% हमारे को टैक्स देना है इंडिया के अंदर, उस प्राइसिंग को होल्ड करने के लिए कोई फिक्स लिमिट है? जैसे हम 8% मार्जिन हमारे को दिखाना ही पड़ेगा? सीलिंग लिमिट कोई नहीं है, मैक्सिमम जितना मर्जी दिखाओ। मिनिमम के लिए अगर रिलेटेड पार्टी से हो रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग विल कम इनटू प्ले, और अदरवाइज जो अगर प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो अपने को 8% दिखाना ही है। तो मिनिमम 8% उसमें भी कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग हो या ना। बेसिस पे आईटीआर फाइल कर रहे हैं। वो तो पवन जी वो तभी है जब वो 2 करोड़ 3 करोड़ की लिमिट है, अगर उसके ज्यादा की टर्नओवर है तो फिर वो 8% वाले से आप बाहर हो जाओ। ओके ओके सर जो हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग का पॉइंट लिया पूरा, जिसमें कि बेस सर एक सिर्फ क्योंकि एक्सपोर्ट साइड हम लोगों ने किया, इंपोर्ट साइड का एक पॉइंट करना था। लास्ट क्वेरी प्लीज। तो जब हम लोग कोई मटेरियल अपनी सब्सिडरी से इंपोर्ट कर रहे हैं ओवरसीज सब्सिडरी कंपनी से इंडिया में, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग एक्ट करेगा कि हमने कहीं ओवर प्राइस करके कोई रॉ मटेरियल तो नहीं परचेज कर लिया उससे? बिल्कुल सर, 2000%। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि हमने लास्ट Now, जिस रेट पे परचेज किया था उसके ऊपर? please. रवि जी प्लीज अब इसको डिस्कस कर लेंगे व्हाटएवर क्वेरी यू सर एक ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी रखवा देना सेशन। आई थिंक ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल सर, प्लीज। So I request Sumit ji, please give some word of thanks to Govind ji. Sir, I would like to thank first for giving me this wonderful opportunity. मेरा डोपामाइन रिलीज होता है ये करके, so you just gave me happiness. मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके, और thank you so much again team कासा, सुमित जी, अंकित जी for moderating this session. I think सुमित जी का शायद थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आई थिंक सुमित जी कैन यू हियर? आई थिंक उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। मे बी विल ज्वाइन अस अगेन।
So, yeah, Sumiji is here. Sumiji, please unmute yourself. Yes, 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 please. Last vote of thanks to Govindji, please, sir. Yes, yes. Special thanks to Govind Bhai for giving wonderful discussion on this special topic where we have not organized any session in earlier last 10 to 15 years. So this is a good topic, and definitely we will plan more sessions regarding this foreign opportunity. And thanks to all wonderful interactive participants. Whatever you have query, you can post it direct to me. Otherwise, we can also connect to our project help desk group. And thank you, Abhijit, for moderating to this program. And thanks to all participants. Thank you, Govind Bhai. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks, Govind. Thank you all. Thank you. Jai. Thank you. Thank you.